उत्तरकाशी टनल वर्टिकल ड्रिलिंग जारी, अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकालने की उम्मीद लगाए हुए हैं। बीच सिलकियार सुरंग बचाव अभियान पर अतिरिक्त सचिव तकनीकी सड़क और परिवहन महमूद अहमद ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में यानी 28 नवंबर से इसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है। The auger out from the pipe. That's going much faster now. This morning, newer plasma cutters have come, and the brave men who are going in there in a pipe with plasma cutters and cutting it piece by piece and taking it out. That's happening now, and progress is faster this morning. Once we've got the auger out, then we can go in and have a look at the pipe and see what condition that's in, and then we can assess what next. As you know, we're about less than 10 metres away. But it's as if it could be 1,000 kilometres away, because we still don't exactly know what's there. We don't know if it's girders, we don't know if it's machines. We've used ground penetrating radar, we've looked ahead, we think we know what's there. But this mountain has shown us that just when we think we know, we don't. So we're being very conservative, making sure no one gets hurt. We don't want to jeopardise the men on the other side as well. So we're making sure they're back. Some people have asked, well, why aren't they digging this way? We say, well, we don't want them to dig this way because the very reasons that it collapsed in the first place might still be there. So we just keep them back, keep them calm, fed with medications, things like that, and they know we're on the way. And I think the feedback that I've got is just knowing that we're here and they're not forgotten, and yes, it's taking a little time, but we're being so careful because we don't want them hurt. We don't want anyone hurt on the way in. And back to when I first arrived, it's everybody home safe and no one hurt. And that's the journey. And as for when we'll be at that destination, I just don't know. Yeah, but that's where we are this morning. And we've got multiple options, as you know, up on the mountain. We're on the top of the mountain with big drilling machines. We've got side access as well for a machine there. We've got... When you say side access, what do you mean? I mean another, it's called a trenchless machine at the side, and we've got the foundations built, and we're about to head for the tunnel horizontally with the idea of intercepting the tunnel with another door, but at the side of the tunnel. And which side is it happening from? It's happening just up the road behind me on the left. There's a little house, little blue house. If you look just beyond that, you'll see the spot. मगर सबसे अच्छा तरीका जो अभी तक हमारे पास है वो प्लान 1 है। प्लान 1 में मैं दोबारा आपको बताता हूं, वही कि जब ऑगर बाहर निकल आएगा पूरा मैनुअली अंदर भेजकर और ऑगर का पावर इस्तेमाल करके 800 मिलीमीटर पाइप अब अंदर धकेलेंगे। अगर वो नहीं होते तो 700 मिलीमीटर के पाइप धकेलेंगे। वो पाइपलाइन जो स्लीव बन रही है वो आगे बढ़ती जाएगी और जो अंदर जो खुदाई है वो मैनुअली होगी। तो 15 मीटर तकरीबन वो मैनुअली खुदाई होगी और ये पुशिंग जो करेगा ऑगर का काम होगा, इसको पुश करके और पाइप्स को लगाना। ये एक तकरीबन फेल सेफ तरीका है, मगर साथ में सेकंड ऑल्टरनेटिव जो अच्छा तरीका है वो ऊपर से जो ड्रिलिंग शुरू हो गई है, जो SJVNL ने शुरू कर दी है। ये इसका टोटल 1.2 मीटर का बोर है। और दिल्ली NCR में प्रदूषण से अभी भी राहत नहीं, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली NCR में आज भी प्रदूषण की धुंध छाई हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI गंभीर स्तर पर बना हुआ है। हालांकि शनिवार के मुकाबले प्रदूषण में आज हल्की कमी जरूर आई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पिछले 2-3 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आज हम गंभीर श्रेणी से बाहर आ गए हैं। देखिए, अभी पिछले 2-3 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी जो है हुई थी, लेकिन आज से अगर हम देखें तो उसमें फिर जो सीवियर कैटेगरी से अभी हम उससे बाहर आ गए हैं और ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि आज से थोड़ी हवा की गति बढ़ेगी। कुछ प्रेडिक्शन ये भी हैं कि हल्की बारिश की भी संभावना है। तो मुझे लगता है कि आज से जो प्रदूषण में सुधार की स्थिति देखी जा रही है वो आगे और बढ़ेगी और आगामी 1-2 दिनों में
प्रदूषण के स्तर में और सुधार देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में अवैध खनन रोकने गए पटवारी रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर दर्दनाक मौत दी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेत माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रेत माफियाओं को रोकने के लिए गए पटवारी को माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला है। फिलहाल ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक रेत माफियाओं के नाम मामले में सामने नहीं आए हैं। मौत हो गई, इस पर क्या अब तक क्या कार्रवाई पुलिस की? जैसा कि अभी कलेक्टर मैडम ने बताया, इसमें पिछले 2-3 दिन से लगातार खनिज, रेवेन्यू और पुलिस का अमला मौके पर जाकर अवैध रूप से जो भंडारित रेत थी उस पर कार्रवाई कर रही थी। और कल भी रात्रि 9 बजे तक वहां पूरी टीम मौजूद थी, जिसमें संयुक्त रूप से रेवेन्यू का अमला, माइनिंग का अमला और पुलिस का अमला वहां पे मौजूद था। उसके बाद जो 4 पटवारी हमारे साथी थे, ये लोग वहां पेट्रोलिंग के हिसाब से गए हुए थे और आते एक इनको रेत की भरी डग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखी और उसको रोकने का प्रयास किया, तो जो बदमाश है उसने हमारे पटवारी साथी पर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे दुखद मृत्यु हो गई। पूरे प्रकरण में रात से ही 3 थानों की पुलिस मौके पर है और शव को भी उठवाकर पीएम के लिए भेजा जा चुका था रात में ही, और जो मुख्य आरोपी था उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है। साथ ही प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। माननीय एडीजी साहब के द्वारा रात में ही इसमें 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था आरोपी पर, और जो ट्रैक्टर था जिससे ये घटना कारित की गई थी वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। अब तक कितने आरोपी पकड़े गए? और लोग हैं, क्योंकि और भी लोग हैं इसमें शामिल हैं। जिले के कितने आसपास लोग? क्षेत्र में और भी खनन हुए हैं। मौके पर जो मुख्य आरोपी था उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और अगर इसमें अन्य भी आरोपी होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। क्या सर पटवारी ने मौके जाने के पूर्व पुलिस को सूचना दी थी? पूरी टीम, जैसा मैंने बताया, 9 बजे तक मौके पर उपस्थित थी और उसके बाद सिर्फ निगरानी हेतु 4 पटवारियों को वहां भेजा गया था और उसके बाद ये पूरी घटना हुई। गिरफ्तारी किस किस की हो चुकी है इसमें? एक जो मुख्य आरोपी था उसकी वहां गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ जारी है लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। और ट्रैक्टर वो जब्त हुआ है? वो ट्रैक्टर जो जब्त हुआ है वो भी उसके पास ही जब्त हुआ है। ट्रैक्टर मालिक भाजपा के 18.5 साल के शासन में किस तरह से रेत और खनन माफिया मध्य प्रदेश में आ रही है, उसका जीवंत उदाहरण आज शहडोल के व्यवहारी में एक हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह को किस तरह ट्रैक्टर को चल के मार दिया गया है। ये दर्शाता है कि भाजपा के पोषित गुंडों द्वारा किस तरह मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के लोगों को किस तरह डरा धमका के पूरे मध्य प्रदेश में शासन किया। तो जीवंत उदाहरण है कि आज भी रेत खनन माफिया सरकार की नाक के नीचे अवैध रूप से रेत खनन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।